मेरी शक्तियां ये लोग मौजूद हैं, ये सब लोग हैं। एक आइडिया मन में आया था कि क्यों ना शटडाउन से अपने प्रार्थना करें ग्लोबली सभी धर्मों के साथ, तो ये सब शक्तियां मेरे साथ में तभी पॉसिबल हो पाया। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम एवरीवन। सो जैसे कि आपने कहा कि क्या इस्लाम क्या मैसेज देता है अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन सब्जेक्ट लाइक प्रेयर्स, यूनिवर्सल प्रेयर्स, हीलिंग, अबाउट हीलिंग। सो कुरान भी गीता की तरह, बाइबल की तरह, इन सब जो होली बुक्स की तरह एक डिवाइन मैसेज है, द कलेक्शन ऑफ डिवाइन मैसेज है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट कुरान एंड इस्लाम। सो first of all, religion is, for my understanding, religion is the art of living on planet earth. Like इस planet पर रहने के लिए हमें एक systematically जो चलना चाहिए जिस हिसाब से, ये religion उसके लिए बनाए गए और गाइड करने के लिए। So इसी तरह इस्लाम और कुरान में भी जो टीचिंग है, अब प्रेयर के लिए ही देख लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि हिंदू के लिए आप प्रेयर ना करें, आप सिख के लिए प्रेयर ना करें, आप क्रिश्चियन के लिए प्रेयर ना करें, या ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट लिखा गया है, एक कुरान की आयत है, आयत नंबर 49, उसमें है तहादुल हुब्बु गैबन विद दुआ, गिव लव, आई विल ट्रांसलेट, गिव लव इन सीक्रेट बाय प्रेइंग फॉर वन एंड अदर। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलरली आप मुस्लिम्स के लिए ही प्रेयर कर सकते हैं। और दूसरी आयत है, उसका मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, ह्यूमैनिटी इज बट अ सिंगल ब्रदरहुड, सो मेक पीस विद योर ब्रदर। सो क्लियरली इस्लाम में भी एक दुआ, एक प्रेयर के थ्रू एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप दूसरे के लिए प्रेयर करते हो, it's a form of love, you are sending them love through the form of prayers. So हम भी इस ग्रुप में वही कर रहे हैं, हम सब collectively pray कर रहे हैं, heal कर रहे हैं for all humanity. तो इस्लाम और कुरान में भी जो बेसिक मैसेज दिया गया है वो यही है। आज की इस बुरी हालत में हम उस प्रभु की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, अपने हाथें परासते हैं ताकि वे हमारी रक्षा करें, हमें इससे छुटकारा दे। हम सभी चाहते हैं इससे छुटकारा, हम सभी चाहते हैं इससे सुरक्षित रहे। सुरक्षा के बहुत सारे उपाय हमारे राजनेताओं ने दी है, जैसे दूरियां रखना। हाँ, जरूर हम दूरियां रखते हैं, अपने घर में ही रहना हम ये भी करते हैं, लेकिन प्रभु ने सुरक्षा का वादा दिया है। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी अभी सुनाना चाहता हूं। इन द बाइबल, देयर इज ए बुक कॉल्ड Psalms, book of Psalms. It is 150 prayers. So the Psalm 91 speaks about this protection which God gives to those who trust in Him. So we saying that 91 Psalm, I want to pray for all of us, for the whole world, for our country, and for all of you who are joining this prayer, that the Lord, according to His promise, protect us from this Mahamari and keep us safe. He who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His fullness is a shield and a buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked.
Because you have made the Lord your refuge, the Most High your habitation, no evil shall befall you, no scourge come near your tent. For he will give his angels charge of you, to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he cleaves to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life I will satisfy him and show him my salvation. This is the promise God has given, that he will protect us. So trusting in his promise, I pray for all of us, for the whole world, for our country, for our leaders, all those who are sick, that they may recover, all the health professionals who are trying to heal those who are sick, all the scientists who are making every effort to find a solution, all the rulers of the different nations of our own nation who are trying to protect its citizens. I pray, Lord, please give that protection you have promised to your people. We are all your children, whether we belong to this nation or anywhere else, whether we belong to this religion or any other. They are all your children, and they are looking with helpless hands at you. And you are all powerful. You know the past, you know the present, you know the future. सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हम सबकी सहायता कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, और जो स्वस्थ हैं उन्हें सुरक्षित रखिए, और उन सभी वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि वे जल्दी से जल्दी ऐसा ढूंढ निकाले कोई रास्ता, और हमारे सभी देशों के अधिकारियों को ऐसी प्रेरणा दें कि अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए वे ऐसी योजनाएं बनाएं जो उनके हित में है। ये सभी प्रार्थनाएं प्रभु आपके चरणों पर रखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कृष्णा गुरुजी को मैंने पहले हीलिंग सेशन भी ज्वाइन किए हैं, कई बार मैंने इनके काम भी देखे हैं, कितने सारे अवार्ड्स जो इन्होंने लिए हैं, चाहे योगा को शिप पर करने की बात हो, चाहे एयर में करने की बात हो। इसके अलावा आज भी इस पेंडेमिक की स्थिति में जो आज विश्व पूरे एक अंधकार में स्थिति है, पशुपेश में है कि आगे क्या होगा, उस समय इस टेक्नोलॉजी से आप जो लोगों को आत्मज्ञान और एक दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं आपके कार्य की सराहना के साथ साथ आपको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। इस समय में लोगों को आप किस राह पर ले जाकर उन्हें अपने आत्मज्ञान से परिचित करा रहे हैं, आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। और दूसरा, सभी लोगों से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज चाहे भारत की स्थिति, चाहे विश्व के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन आप इस बात को देखें कि आज भारत की स्थिति इस पेंडेमिक में और देशों से, जो अग्रणी देश हैं, उनसे बेटर इसलिए कि हम लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा। सभी लोग शासन प्रशासन की बात को मानकर अपने अपने घरों में रहें। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार कुछ रिलैक्सेशन भी दे, लेकिन उस रिलैक्सेशन का उपयोग हमने जरूरत के अनुसार करना है। सिर्फ बगैर उसके जरूरत के हम घर से ना निकले। जब बहुत ही जरूरी कार्य हो तभी घर से निकले, तभी हम स्थिति को मेंटेन रख सकेंगे। और एक बहुत बड़ी बात जो सभी को अवेयर होनी चाहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे इटली हो, चाहे और देश हो, उनमें पर मिलियन जो डेथ रेट है, कहीं 300, कहीं 400, कहीं बेल्जियम में 462 है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 मिलियन पे 1 भी नहीं है, आज 1 से भी नीचे है। तो इसलिए ये सब इसलिए हो सका कि हम सब लोगों ने इस सोशल डिस्टेंसिंग को, इस फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाया।
तो इससे मेरा सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसे जरूर अपनाएं। सिर्फ इसमें यही एक मूल मंत्र है, इसी से हम इस पर विजय पा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका एक बार और कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। और इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही आपके कामों के लिए मैं फैन हूँ आपका कि आप इतने सारे सोशल काम करते रहते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक में भी और इस टेक्नोलॉजी को आपने इसके लिए यूज किया, मैं बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, इसे पूरी तारीफ का मैं शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोग कृष्णा गुरुजी के नाम से जानते हैं और देश विदेश में मेरी हीलिंग के कारण लोग मुझसे हीलिंग लेते रहते हैं। जैसे ही 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ 25 मार्च को कि सब लॉकडाउन में रहेंगे और 21 दिन तक उन्होंने मंगल प्रार्थनाएं करने का बोला, उसके बाद हम लगातार हम संकल्प मन में लिए कि हम क्यों ना एक संयुक्त प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना जिसमें अरदास भी हो, दुआ भी हो, प्रार्थना भी हो, मंत्र भी हो। तो वही संकल्प लेकर हम 25 तारीख से हमने प्रार्थना अविरत चालू करी। ग्लोबल प्रेयर, ना कि देश ना कि राज्य, सभी 29 से अधिक देशों के साथ, लोगों के साथ हमने मिलकर एक संयुक्त प्रार्थना चालू करी रोज शाम को 8:30 बजे। उसमें संकल्प लेता था प्रार्थना का, हमारा एक संयुक्त प्रार्थना का लक्ष्य था कि कोरोना वायरस से ग्रस्त जो मरीज हैं उनको राहत पहुंचे और उनके परिवार जो त्रासदी झेल रहा है उनको राहत पहुंचे। और क्योंकि कोई भी चीज को ठीक होने में 2 चीज लगती है, दवा और दुआ। दवा का काम तो डॉक्टर्स नर्सेस सब कर ही है, हम लोग अपने घरों में बैठकर क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संयुक्त होकर एक प्रार्थना करें। तो संयुक्त प्रार्थना हमारी अविरत चल रही है, जिसमें अलग अलग के धर्म के लोग आ रहे हैं, अपने अपने विचार देकर आ रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों से बातचीत करके हमने निष्कर्ष यही निकाला कि अंत में मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और वो मानव धर्म के लिए हम सबसे संयुक्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तो जब तक लॉकडाउन का पीरियड चलेगा हम जब तक करते रहेंगे 3 मई तक। और मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज के माध्यम से आप लोग भी ज्वाइन करें इस निःशुल्क प्रार्थना सभा में, जो हमारी धर्म से ही मानव धर्म के लिए प्रेषित हो। और मेरा पूरा विश्वास है यही संयुक्त प्रार्थना और आप लोगों के द्वारा घर में की जाएगी प्रार्थना एक जरूर रिजल्ट लेके आएगी और महामारी से हमको जरूर मुक्ति दिलाएगी। नमस्कार।